barren woman in the Bible. She wanted a son, and she got the fasting for him. बाइबल में हन्ना जो बांझ स्त्री थी, उसने एक बेटा चाहा और उसने उसके लिए उपवास रखा. And she fasted and prayed until even the priest at the temple thought she was drunk. She was in such desperation. और उसने उपवास और प्रार्थना जब तक की कि यहाँ तक कि मंदिर के याजक ने ये सोचा कि वो शराब पिए है. वो इतनी व्याकुलता में थी. With the rest of the women watching what kind of a bonnet the other one wore. You know how it goes. दूसरी स्त्रियां एक दूसरे को देख रही थीं कि वे किस किस प्रकार की टोपियां पहनकर आई हैं, और आप जानते हैं कि कैसे कैसे होता है. And the other one seeing what kind of clothes they had on and talking about the things going on the farm, but not Hannah. और दूसरी स्त्रियां ये देख रही थी कि वो किस किस प्रकार के वस्त्र पहनकर आई हैं और क्या क्या चल रहा है गांव के खेतों में, लेकिन हन्ना ऐसा नहीं कर रही थी. She stepped right through the whole crowd and went to the altar. She'd been fasting. She wanted her reproach taken away. वो सारी भीड़ से बाहर निकलती हुई ऑल्टर पर चली गई. वो उपवास कर रही थी. वो चाहती थी कि उसकी नाम धराई खत्म हो जाए. What a difference it is. It's almost a reproach to have a child. आज कितनी भिन्नता है. आज बच्चा होने में तिरस्कार होता है. Then it was a reproach not to have one. तब वो समय था कि बच्चा ना होना तिरस्कार की बात होती थी. And she got on her knees, and she never noticed the dignity of the temple. और वो अपने घुटनों पर आ गई. उसने मंदिर के सम्मान पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया. She never noticed the dignified priest as he walked out. उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि एक प्रतिष्ठित याजक वहां से निकल कर गया. She was in such distress till the tears was rolling down her cheeks, and she was crying in desperation, "Oh Lord God, give me a son. Give me a son." वो इतने कष्ट में थी कि उसके आंसू उसके गालों पर से होकर बह रहे थे और वो व्याकुलता में रो रही थी. और प्रभु परमेश्वर, मुझे एक बेटा दे, मुझे एक बेटा दे. Notice, she wasn't selfish. और देखिए, वो स्वार्थी नहीं थी. When God heard her and answered her prayer and gave her a son, she gave him back to God. जब परमेश्वर ने सुनकर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे बेटा दिया, तो उसने उसे परमेश्वर को दे दिया. And because that she was willing not to be selfish after God had answered her prayer, He gave her a prophet. और क्योंकि जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, तो वो स्वार्थी नहीं हो गई. उसने उसे भविष्यद्वक्ता दिया. That was an extra blessing. Oh, He's just full of them. Those little extra things that He gives. ओह, ये तो अतिरिक्त आशीषें हैं. ओह, वो तो अतिरिक्त चीजों से भरा पड़ा है जो वो देता है. Not only a son, but a prophet. And there had been no open vision for many, many years in Israel. केवल एक बेटा ही नहीं, परंतु एक भविष्यद्वक्ता. और उस समय बहुत वर्षों से इजराइल में खुला दर्शन नहीं मिलता था. Samuel, the first prophet for many, many years, because a mother got desperate that she could have no children. And she's past the age of bearing, probably 60, 70 years old. बहुत वर्षों में सैमुएल पहला भविष्यद्वक्ता हुआ, क्योंकि एक माँ व्याकुल थी कि उसके बच्चे नहीं हो सकते थे और वो बालक उत्पन्न करने की आयु को पार कर चुकी थी. हो सकता है 60-70 वर्ष की हो. And she prayed with desperation. She must have this child. और उसने व्याकुलता में प्रार्थना की कि उसके पास भी एक बालक हो. What is it? God had spoke to her, no doubt. ये क्या था? परमेश्वर उससे बोला था, इसमें कोई संदेह नहीं. You can't be desperate till God speaks to you. जब तक परमेश्वर आपसे बात ना करे, आप व्याकुल नहीं हो सकते. Oh, church, rise and shake yourself. Pinch your conscience. Wake yourself up in this hour. We must be desperate or perish. ओ कलीसिया, उठ और स्वयं को होश में ला. अपने विवेक को कचोट. इस घड़ी में अपने आप को जगा ले. हमें व्याकुलता में जाना चाहिए या फिर नष्ट. There's coming forth something from the Lord. I know it is thus saith the Lord. अब कुछ प्रभु की ओर से आ रहा है. मैं जानता हूँ कि ये यहोवा यूं कहता है. There's coming forth something and we better get desperate.
between life and death. It'll pass through us and we won't see it. यहाँ अब कुछ आ रहा है और अच्छा है कि हम व्याकुल हो जाएं। ये जीवन और मृत्यु के बीच में है। ये हमारे बीच में से होकर निकलेगा और हम इसे नहीं देख पाएंगे। Because that she wasn't selfish, she was given a prophet. क्योंकि वो स्वार्थी नहीं थी, इसलिए उसे भविष्यवक्ता दिया गया। The Shunammite woman had a little boy that the prophet had spoke the word of the Lord over, though she was old and her husband old. उस शुनेमिन स्त्री के पास एक पुत्र था जिसके लिए भविष्यवक्ता ने परमेश्वर का वचन बोला था, यद्यपि वो और उसका पति बूढ़े थे। They had no children, but she was kind to this prophet. And she knew that he was a man of God. उनके पास बालक नहीं थे, परंतु वो इस भविष्यवक्ता के प्रति दयालु थी। वो जानती थी कि वो परमेश्वर का जन था। She perceived that he was honorable, a real man. उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो माननीय और एक ठीक व्यक्ति है। He come into the house, her husband not there, and whatever more, he was a holy man. वो घर में आया और उसका पति वहाँ नहीं था, और चाहे जो भी हो वो पवित्र व्यक्ति था। They could see that he was an honorable person. वे देख सकते थे कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। She'd watched him do signs and wonders. उसने उसे चिन्ह चमत्कार दिखाते देखा था। She'd heard him tell things that happened. उसने उसे घटित होने वाली बातों को बताते हुए देखा था। He was an honorable, holy man. वो सम्मानित पवित्र व्यक्ति था। She said to her husband, I perceive that this man that stops with us is a holy man. उसने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि ये पुरुष जो हमारे यहाँ आकर ठहरता है एक पवित्र व्यक्ति है। The lady of the house, she knew that he was a holy man. उस घर की स्त्री इस बात को जानती थी कि वो एक पवित्र व्यक्ति था। And she built a little house out there for him, so he wouldn't be embarrassed. और उसने उसके लिए वहाँ पर एक घर बना दिया ताकि वो परेशान ना हो। He could come by when he wanted to and so forth. और वो जब भी चाहे आ सकता था और वगैरह वगैरह। She put a little bed out there and a jug of water and so forth so he could wash himself and have something to drink. उसने वहाँ एक पलंग लगा दिया और एक पानी का जग और सामान ताकि वो नहा धो सके और पानी पी सके। She'd probably send a maid out or somebody, the butler, with some food to feed him and come by and visit the day to him or something. और हो सकता है कि उसने कोई सेविका या किसी और को खाना बनाने वाला खाना लेकर उसे खिलाए और वापस आ जाए और दिन में उसकी आज्ञा को सुने या जो भी हो। And so when Elijah saw this kindness done to him, and it's written, what you do to my little ones, you do it to me. और इसलिए जब एलिया ने देखा कि ये सब उसके लिए किया गया है और ये लिखा है कि जो तुमने मेरे छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। So she saw that the woman was honoring God as she honored this prophet, as she seen God in the prophet. इसलिए जब उसने देखा कि ये स्त्री परमेश्वर का मान कर रही है क्योंकि ये भविष्यवक्ता का आदर कर रही है जैसे कि उसने परमेश्वर को भविष्यवक्ता के अंदर देखा। And so she wanted nothing for it. It wasn't in her heart for anything. She just done it because she loved God. और इसलिए वो इसके बदले में कुछ नहीं चाहती थी। उसके हृदय में कोई बात न थी। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। She didn't do it for any blessing. She just done it. उसने ये किसी आशीष के लिए नहीं किया था, बस उसने किया था। Now Elijah said, go ask her, shall I speak to the king for her? I'm a personal friend. Or the chief captain, I know him real well. अब एलिया ने कहा, जाकर उससे पूछ कि मैं उसकी चर्चा राजा से करूं, वो मेरा मित्र है, या सेनापति से, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। There's some favor, something I could do for her. I want to give her something for how she's been to me. मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। She's fed me, she's let me sleep in the beds, and she's been real nice to us. Now what can I do? उसने मुझे खाना खिलाया है, सोने के लिए पलंग दिया है, वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? She said, no, I just dwell among my people. We're well off. We have a living, and that's all. We don't need nothing. उसने कहा, नहीं, मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। And Gehazi said to him, but she doesn't have any children. गहेजी ने उससे कहा, परंतु उसके पास कोई बालक नहीं है। No more Gehazi saw it, no doubt. The prophet saw a vision. For he said, thus saith the Lord. Go tell her, in the proper time or proper time, a year from now she'll embrace the son. गहेजी ने इससे अधिक नहीं देखा,
कोई संदेह नहीं कि भविष्यद्वक्ता ने दर्शन देखा, क्योंकि उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, उससे जाकर कहे, उपयुक्त समय या ठीक समय में अब से 1 वर्ष में वो एक पुत्र को आलिंगन करेगी। And the son was born. और पुत्र उत्पन्न हो गया। When he's about 12 years old, how that old couple must have loved this little boy, their only child. जब वो लगभग 12 वर्ष का हुआ, वो उस बूढ़े दंपति उस बालक से कितना प्रेम करते थे, उनका एक ही बालक। And one day he was out cutting wheat with his daddy. और एक दिन वो बाहर गेहूं की कटनी पर अपने पिता के साथ गया। Must have been about the middle of the day. He had a sunstroke, I suppose, because he began to holler in my head. हो सकता है वहाँ बीच दोपहर में हो और उसे लू लग गई हो, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो चिल्लाया, मेरा सिर। He got sicker and sicker. His daddy had to take him from the field. And it's such an emergency there that he sent a servant and sent him in. उसकी हालत और खराब होती चली गई। उसके पिता को उसे खेत पर से ले जाना पड़ा और इतनी आपातकालीन स्थिति थी कि उसे एक और नौकर को वहाँ लेकर घर भेजना पड़ा। The mother held him on her lap until noontime and he died. माँ उसे दोपहर तक अपने गोद में लिए रही और वो मर गया। Notice, her only child that had been given to her by the Lord through the prayer and the promise of a prophet, and thus saith the Lord. ध्यान दें कि उसका एक ही बालक, जो कि उसको प्रभु से प्रार्थना और भविष्यद्वक्ता की प्रतिज्ञा से और यहोवा यूं कहता है से मिला था। She knew there was something wrong somewhere. It just wouldn't work. वो जानती थी कि कहीं कोई गड़बड़ है, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। How would God give her that son and let her love come to that baby? परमेश्वर ने किस प्रकार उसको पुत्र दिया था और उसको उस बच्चे से प्रेम हो गया था। Yet she never asked for it. She was too old to have it. जबकि उसने उसे कभी नहीं मांगा था, उसे पाने के हिसाब से वो अधिक बूढ़ी थी। The hand of God had to pronounce it. A man spoke at the prophet, and there this baby in this condition had died, her only son. परमेश्वर की सामर्थ ने ही निर्णय लेना है। एक मनुष्य जो कि भविष्यद्वक्ता है, यही वो बोला था, और यहाँ पर ये बालक इस दशा में मर गया, उसका एकलौता पुत्र। So she said to the servant, "Saddle me a mule, and you ride, and don't you stop. If anybody tries to stop me, don't you say a word." इसलिए उसने अपने सेवक से कहा, मेरे लिए खच्चर तैयार कर और तू उसे हाँके चल और मत रोक। यदि तुझे कोई रोकने का यत्न करे तो उससे मत बोल। And you drive straight to Mount Carmel, up there, a cave somewhere, pull back. There's the servant of the Most High God, the one who told me, "Thus saith the Lord, I'll have the baby." I want to know why God did this. और तू उसे कार्मेल पर्वत तक हाँके चल, वहीं कहीं एक गुफा में महान परमेश्वर के दास को ढूंढ ले, वही जिसने मुझसे कहा था, यहोवा यूं कहता है कि मेरे एक बालक होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। So he said, "Go straight forward and don't check that mule. Let him run. This is hard as everything's in him. Let him run till you get there." Desperation. इसलिए उसने कहा, बिल्कुल सीधा बढ़ता चला जा, खच्चर को रोकना मत, और जितनी तेज इसे ले जा सकता है इसकी पूरी सामर्थ्य में ले चल, जब तक वहां ना पहुंचे इसे दौड़ाए रख। व्याकुलता में Elijah the prophet raised up, looked and said, "Here comes that Shunammite. And there's something wrong with her. God's kept it from me. I don't know what's wrong." और भविष्यद्वक्ता एलिया ने उठकर देखा और कहा कि शूनेमिनी आ रही है और उसके साथ कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, मैं नहीं जानता कि क्या बात है। Said, "Go meet her. Let's hurry. There's something wrong." उसने कहा, जाकर उससे भेंट कर। मैं खड़ा, चलिए जल्दी करें, कुछ गड़बड़ है। Desperation set in on the prophet. Desperation on the woman. भविष्यद्वक्ता पर व्याकुलता छा गई, स्त्री पर भी व्याकुलता है। See, they were coming together. One wanting to know what the word of the Lord was, the other didn't know what the word of the Lord was. Here you are. देखिए वो पास आ रहे थे, एक मालूम करना चाहता था कि परमेश्वर का वचन क्या था और दूसरा नहीं जानता था कि प्रभु का वचन क्या था। आप भी ऐसी स्थिति में हैं। One wanted to know it, the other didn't know it. एक मालूम करना चाहता है और दूसरा नहीं जानता। The woman wanted to know it, and the prophet didn't know it. वो स्त्री मालूम करना चाहती थी और भविष्यद्वक्ता नहीं जानता था। Said, "God's kept it from me. I don't know what to tell her when she gets here." उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं पता कि जब वो यहाँ आएगी तो मैं क्या कहूँगा। So she's almost there then. तब लगभग वो वहीं पहुँच गई। He raised up his hand and said, "Is all well with thee? All well with thy husband? Is all well with the child?" उसने अपने हाथ उठाकर पूछा,
सब ठीक तो है तेरे साथ? तू अपने पति के साथ ठीक है? क्या तू अपने बालक के साथ ठीक ठाक है? Now the woman had reached the end of her desperation. अब वो स्त्री अपनी व्याकुलता के अंतिम छोर पर आ गई। She said, all is well. Glory. All is well. उसने कहा, सब ठीक है, महिमा हो, सब ठीक है। Her desperation is over. She had found the servant of the Lord. उसकी निराशा समाप्त हो गई, उसे प्रभु का सेवक मिल गया। If he hadn't been there, she'd still been in desperation. यदि वो वहाँ नहीं होता तो अब तक व्याकुलता में ही रहती। But you see, he was there. परंतु देखिए वो वही था। She said, all is well. उसने कहा, सब ठीक है। Elisha thought, well, what's going on now? इलीशा ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। So she ran up and fell down at his feet. वो दौड़ती हुई आई और उसके चरणों पे गिर गई। That looked kind of uncommon. So Gehazi just lifted her up. ये देखने में ठीक सा नहीं लगा, इसलिए गेहजी ने उसे उठाया। Said, let her alone. Don't do that. उसने कहा, उसे छोड़ दे, तू ऐसा ना कर। Elijah said to his servant, don't do that, let her alone. There's something wrong. God keeps it from him. एलिया ने अपने सेवक से कहा, ऐसा मत कर, उसे छोड़ दे, कुछ गड़बड़ है, परमेश्वर ने मुझसे छिपा रखा है। Then she revealed to him that the baby was dead. तब उसने बताया कि बालक मर गया है। Now the prophet didn't know what to do. भविष्यद्वक्ता नहीं जानता है कि उसे क्या करना है। He said, Gehazi, take this staff that I've walked on. उसने कहा, गेहजी, ये छड़ी ले जिससे मैं चलता हूँ। He knew that whatever he touched was blessed. Because it wasn't him, it was God in him. वो जानता है जो कुछ भी वो छूता है वो आशीषित होता है, क्योंकि ये वो नहीं था, उसमें परमेश्वर था। He knew who he was. He knew that he was a prophet. वो जानता था कि वो कौन था, वो जानता था कि वो भविष्यद्वक्ता है। So he picked up the staff and said, Gehazi, you take this and you go and lay it upon the child. इसलिए उसने छड़ी उठाकर गेहजी से कहा कि तू इसे ले जाकर उस बालक के ऊपर रख दे। And if anybody speaks to you, you get desperate. और यदि कोई तुझसे कुछ बोले तो तू भी व्याकुलता में ही रहना। Don't you sleep nobody and let go. Just keep going on. Don't speak to nobody. Put it upon the child. और किसी को भी अभिवादन नहीं करना और कुछ भी नहीं, बस चलते चले जाना और किसी से बात न करना, इसे बालक पर रख देना। But the woman, that didn't end her desperation. That didn't satisfy what she come for. परंतु वो स्त्री, उसकी व्याकुलता समाप्त नहीं हुई, जिस कारण वो आई है, उससे वो अभी संतुष्ट नहीं है। She said, as the Lord God lives, I'm not going to leave you until you go minister to the child. उसने कहा, जीवते प्रभु परमेश्वर की सौगंध, मैं तुझे जब तक ना छोड़ूंगी जब तक तू बालक के पास न चलेगा। And Elijah got desperate. और एलिया व्याकुल हो गया। There he went, down the road, him and the woman. और वो और स्त्री दोनों उस मार्ग पे हो लिए। And when they got there, all the people were out in the yard screaming and crying. और जब वे वहाँ पहुँचे, सब लोग वहाँ आंगन में चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। And the woman had done the most appropriate thing could be done. She took the baby and laid him on the bed where Elijah had laid him. और उस स्त्री ने जो उपयुक्त कार्य किया, जो वो कर सकती थी, कि उसने बालक को लेकर उस पलंग पे लिटा दिया था जहाँ पर एलिया लेटता था। That was as good as the staff. वो उसकी छड़ी के समान ही था। And he didn't wake up there so the thing wouldn't work. वो वहाँ पर से नहीं उठा, इस चीज से काम नहीं चलेगा। She wanted to know something different. वो कुछ और अलग से जानना चाहती थी। The prophet went in. Now he's in desperation. भविष्यद्वक्ता अंदर गया, इस समय वो व्याकुलता में है। Now what's he going to do? अब वो क्या करने जा रहा है? And we find in the Bible they walked up and down the floor. Desperate. और हम बाइबल में पाते हैं कि वो कमरे में इधर उधर व्याकुलता से चहलकदमी करने लगा। I don't know nothing else to do, Lord. Here I am. You told me to speak that to that woman, and thus saith the Lord, and it's exactly the way I told her, because you told me. प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, मैं तेरे सामने हूँ। तूने मुझसे उस स्त्री को बोलने को कहा था, यहोवा यूं कहता है, और मैंने बिल्कुल वैसे ही उसको वैसे ही कहा, क्योंकि तूने मुझसे कहा था। Now there she's in trouble, and I don't know what to do. There lays a dead boy. What can I do, Lord? अब वो संकट में है और मैं नहीं जानता कि क्या करूं। ये वो मृत बालक पड़ा है, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं? No doubt the Holy Spirit said, if the God is in you, then lay yourself on the baby. इसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्र आत्मा ने कहा,
यदि परमेश्वर तुझ में है तो बच्चे के ऊपर लेट जा। First thing you know, he stopped, put his hands upon his hands, his nose upon his nose, his lips upon his lips. पहली चीज आप जानते हैं, वो रुका, चला और अपने हाथ उसके हाथों पर रखे, अपनी नाक उसकी नाक पे रखी, अपने होंठ उसके होंठ पे रखे। And when he laid himself over it, the baby sneezed 7 times. Desperation was over. और जब वो उस पे लेट गया तो बालक ने 7 बार छींका, निराशा समाप्त हो गई। The baby come to life because the desperation drove the woman to the prophet, and desperation drove the prophet to the baby. बालक जीवित हो गया क्योंकि व्याकुलता स्त्री को भविष्यद्वक्ता के पास ले गई और व्याकुलता भविष्यद्वक्ता को बालक तक ले गई। Desperation, both of them drove God on the scene. और उन दोनों की व्याकुलता ने परमेश्वर को दृश्य पे खींच लिया। With love of God and love for His people, brought the love of God down and thrown faith out on the battlefront, and the work was done. Case closed. परमेश्वर के प्रेम से और उसके लोगों के लिए प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को नीचे उतार ले आया और विश्वास लड़ाई के मैदान में आ गया और काम हो गया, मामला खत्म हो गया। Amen. That's it. Desperation does it. Certainly, she wasn't going to leave. आमीन, यही है, व्याकुलता यही करती है। निश्चय ही वो उसको छोड़ने वाली नहीं थी। Blind Bartimaeus thought Jesus was going to pass him by, sitting out there at the gate, blind, beggar for alms. अंधे बर्तिमेयुस ने सोचा मैं फाटक पर अंधा भिखारी भीख के लिए बैठा हूँ, यीशु उसके पास से निकल जाएगा। The first thing you know, he heard a noise. Jesus is passing by. आप जानते हैं कि पहली चीज उसने शोर सुना, यीशु निकल रहा है। He said, "Who passes by?" Somebody shoved him down. उसने कहा कौन जा रहा है? किसी ने धक्का मार कर नीचे बैठा दिया। He said, "Please, somebody, who's passing by?" उसने कहा मेहरबानी से कोई बताए कि कौन निकल रहा है। One of them, maybe a kind little disciple woman, said to him, said, "Sir, don't you know who that is passing by?" उसमें से एक हो सकता है यीशु के पीछे चलने वाली कोई दयालु स्त्री होगी। उसने कहा श्रीमान, क्या तुम नहीं जानते कि कौन निकल रहा है? No, I hear some of them say there's a whole graveyard full of dead people up here. If you raise the dead, go raise them. Is it a blasphemer or somebody? नहीं, मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि पूरा कब्रिस्तान जो मरे हुए लोगों से भरा हुआ है यही है। यदि तुम मुर्दे जलाते हो तो जाओ जलाओ। उन्हें ये कोई निंदा करने वाला या कोई था। Oh, have you ever heard of that prophet of Galilee, that young prophet called Jesus of Nazareth? No. नहीं, क्या तुमने कभी गलील के युवा भविष्यद्वक्ता के विषय में सुना है? वो युवा भविष्यद्वक्ता यीशु नासरी कहलाता है? नहीं। Well, you know, in the Bible it says in our scrolls that the son of David will be raised up to sit on. That's him. क्या तुम जानते हो कि बाइबल कहती है कि हमारे उन लिपटे रोलों में कि दाऊद का पुत्र उठेगा कि वो वहाँ बैठे? ये वही है। Is that him? Is that him? And he's passing by. क्या ये वही है? क्या ये वही है? और वो निकला चला जा रहा है। Desperation drove him to scream, "Oh, Jesus, thou son of David, have mercy upon me." व्याकुलता ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, ओ यीशु, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। Pass me, not O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me. मुझे छोड़ न जाना, ओ दयालु बचाने वाले, मेरी दीन रोने को सुनना। जब तू दूसरों को बुला रहा हो, मुझे छोड़ न जाना। Oh, Jesus, some of them said, "Shut up. You make too much noise." But he was desperate. ओ यीशु, उनमें से बहुत ने कहा चुप रहे, तू बहुत शोर मचा रहा है, परंतु वो व्याकुल था। If he got by, he might never have another opportunity. We might not either. This might be the last night. यदि वो रह जाता तो हो सकता है उसे दूसरा मौका न मिलता, हो सकता है हमें भी न मिले, हो सकता है ये अंतिम रात्रि हो। Desperation, he screamed out, "Oh, Jesus!" No matter who told him to stop, he cried just the same, that much more louder. व्याकुलता, वो चिल्ला उठा, ओ यीशु। कोई मतलब नहीं किसने उसे रोका, वो बहुत जोर से वैसे ही चिल्लाया। When they told him to shut up and made him get louder, he was desperate. Nobody could stop him. जब उन्होंने उसे चुप रहने को कहा तो वो और जोर से चिल्लाया। वो व्याकुल था, उसे कोई नहीं रोक सकता था।
Thou son of David, have mercy on me. हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। And he screamed in desperation, and the Son of God, with the sins of the world upon his shoulders, going to Jerusalem to be offered up right then for a sacrifice for the world, stopped in his tracks. और वो व्याकुलता में चिल्लाया, और वो परमेश्वर का पुत्र जो संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाए यरूशलेम को चढ़ने जा रहा था, तभी संसार के बलिदान के लिए जा रहा था, अपने मार्ग पर रुक गया। Desperation, a despairing cry stopped the Son of God. So what would you have me do for him? व्याकुलता, निराशा पूर्ण चिल्लाहट ने परमेश्वर के पुत्र को रोक दिया। उसने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? Oh, the Lord, that I might receive my sight. उसने कहा, ओ प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। Said, go your way, your faith saves. उसने कहा, अपने मार्ग पे चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। That was enough. Desperation. ये व्याकुलता बहुत थी। When desperation is to receive something, the faintest little touch, faith grabs it. See? जब व्याकुलता कुछ प्राप्त करने पर होती है, तो उसके मामूली सा भी छू लेने से विश्वास उसे पकड़ लेता है। समझे? You just said, oh, wait a minute, hold on, just a minute, let me see if I can see now. I've never seen my hands for many years, let's see if I can see it. I don't see nothing yet. उसने ये नहीं कहा, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, एक मिनट शांत रहो। यदि मैं ये देख सकूं तो मुझे एक मिनट देखने दो। मैंने बहुत वर्षों से अपने हाथ नहीं देखे, मुझे देखने दो। यदि मैं देख सकूं तो अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखता। When Jesus said, thy faith has saved thee, that was enough. That's all he wanted. तब यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तो यही बहुत है। यही वो चाहता था। Desperation calls for a subject, and when the subject, no matter how faint it is, it's received, it's believed right there, because faith catches when desperation is pushing it. See? व्याकुलता किसी विषय पर होती है, और ये विषय कितना भी धूमिल क्यों ना हो, वो प्राप्त कर लेता है। वो तभी विश्वास कर लेता है, क्योंकि व्याकुलता जब उस विश्वास को आगे धकेलती है, तो विश्वास उसे पकड़ लेता है। समझे? Love in there mixes with it and brings it to it. Desperation does it. प्रेम इसमें मिश्रित होता है और इसको वहां तक ले आता है। ये व्याकुलता करती है। Blind Bartimaeus caught the vision quickly. अंधे बर्तमई को तुरंत दृष्टि मिल गई। Peter is all steamed up one night on the sea when he got in desperation and he began to cry out, there's something wrong. I see a spirit come walking to me. एक रात सागर में पतरस बिल्कुल थक गया था, और जब वो व्याकुल हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ गड़बड़ है, मैं एक आत्मा को अपनी ओर आते देख रहा हूँ। The ship was about to go down. नाव डूबने पर है। He said, if it be you, Lord, bid me come to you on the water. उसने कहा, यदि ये तू है प्रभु, तो मुझे पानी पर तुझ तक पहुँचने की आज्ञा दे। And he stepped down out of the ship and started, and he got scared when he got started, and he started to sink in desperation. और उसने नाव से बाहर कदम रखा और शुरू हो गया। जब वो शुरू हुआ तो डर गया और वो डूबना शुरू हो गया, और व्याकुलता। Though a mistake in trying to follow the commandments of God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में यद्यपि गलती हुई, I hope the church gets that. मैं आशा करता हूँ कि कलीसिया से समझ गई। The man was doing what God told him to do. वो व्यक्ति वही कार्य कर रहा था जो उसे परमेश्वर ने करने को कहा था। Now you Christians tonight, you're in the line of duty, trying to follow the leading of the Holy Spirit, and a cancer grabs you, or a death grabs you, the cancer, tuberculosis, whatever it is. अब मसीह हो, तुम अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की कोशिश में हो, और कैंसर ने तुम्हें पकड़ा हुआ है या मृत्यु ने आपको पकड़ा हुआ है, कैंसर, टीबी, ये जो कुछ भी है। In the line of duty, you have the same right that Peter had. इस कर्तव्य के मौके पर आपके पास भी वही अधिकार है जो पतरस के पास था। Lord, save me or I'll perish. प्रभु मुझे बचा ले, नहीं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। In desperation, he called out, and a hand reached and picked him up. व्याकुलता में उसने पुकारा और एक हाथ में बढ़कर उसको थाम लिया। You have the same name. आपके साथ भी यही चीज है। But he screamed out, save me, Lord. Amen. परंतु वो चिल्ला उठा,
प्रभु मुझे बचा ले। He heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. उसने मेरी निराशा की आवाज को सुना, उसने पानियों में से मुझे उठाया, अब मैं सुरक्षित हूँ। समझे? That's it. When you cry out, जब आप चिल्लाते हैं तो यही होता है।